खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात एससीओ की करेंगे। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आतंकी देश का प्रवक्ता कहा। उन्होंने कहा कि आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। जयशंकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि एससीओ बैठक में बिलावल के साथ विदेश मंत्री के तौर पर बर्ताव किया गया। वो आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता हैं। पाकिस्तान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तमाम बातें एस जयशंकर ने कही। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India, and the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. Is depleting even faster than its forex reserves. So, you know, let's be clear what this is about. On your question, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. देखिए, I said उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है. I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. On the weaponization, you know, it's a very interesting statement because it unconsciously reveals a mindset. What does weaponizing something mean? It means that the activity is legitimate and somebody is weaponizing it. So you say you are weaponizing trade, you are weaponizing technology. Somebody says you are weaponizing terrorism, that means they think terrorism is legitimate, that we should not weaponize it. That is normal. Okay. Now, what are we doing? We are countering ourselves. Countering terrorism. We are defending ourselves. We are calling it out. We are exposing it. And some of it is what you saw today. So, you know, to me, we are not scoring diplomatic points. We are politically, diplomatically exposing Pakistan before the world. And as a victim of terrorism, I am completely entitled to do so. I mean,
what do you mean we should not weaponize terrorism? That means as a victim I'm supposed to put up with it. I mean, so you not only commit terrorism, but you say, oh, please do not even speak about it. I mean, come on. So, to me, that sentence, it spoke so much about a mindset of that country. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सीमा विवाद के कारण भारत चीन संबंधों की स्थिति असामान्य है. Where FM Qingang of China is concerned, much of our attention, I think predictably, went to the disengagement issue in the Western sector. Yeah, but here again, the G20 and BRICS featured in the talks because China is a member of both groupings. With Minister Saidov of Uzbekistan, it was a warm first meeting. We took stock of our bilateral ties and agreed to have another conversation soon. This was also the case with Deputy Prime Minister and Foreign Minister Nutliev of Kazakhstan. With my Tajik and Kyrgyz counterparts, Foreign Minister Sirajuddin and Kulubayev, now they are long-standing friends with whom we have a rolling, ongoing conversation. And some of the subjects which came up in the meeting with them were overlapping with those of the others in Central Asia. They included connectivity, counter-terrorism, health, trade and energy. With all the Central Asian ministers, we agreed that the India-Central Asia format meetings in different domains should take place at an early date. So the overall sense that I would like to share with you is that of a productive SCO Council of Foreign Ministers meeting. I think it was useful in preparing the ground for the summit. उधर राजौरी के कंडी के केसरी हिल इलाके में आतंकियों के साथ इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हुए हैं. सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं. मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, मुख्तलिफ एंगल, विभिन्न एंगल से हमने आपको दिखाई. राजौरी के कंडी में इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर की पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 JKLH ने आपको बताई, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे. सर्च ऑपरेशन किस तरीके से जारी रहा और किस तरह की डिप्लॉयमेंट्स वहां पर रही, ये हमने आपको दिखाई. और एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं. ड्रोन का भी सहारा लिया गया, चॉपर का भी सहारा लिया गया, ताकि मुख्य जगह, अहम जगह वो पता चल पाए जहां पर इस वक्त आतंकियों ने शरण ली है. तो 3 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं. इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा. और इसी तरह की कई तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर वक्तन फवक्तन दिखा रहे हैं. इस आपको बता दें कि मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत हुई है, जिन में से 2 जवानों का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है. इस वक्त 4 एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं. कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 के जरिए हम तक का हमारे संवाददाता के जरिए मिली है. चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आतंकियों का ठिकाना पता लगाया जा सके, ठिकाना उनका मालूम किया जा सके. और इसके बाद देखा गया कि थोड़ी सी रणनीति बदली गई और रणनीति बदलते हुए घरों की छतों पर भी फौज की टुकड़ियां मौजूद रहीं और साथ ही साथ उन रास्तों को ब्लॉकेज करने की कोशिश की गई जिनसे ये अनुमान लगाया जा रहा था, आशंका जाहिर की जा रही थी कि आतंकी नीचे उतर सकते हैं. अभी इस ऑपरेशन के खात्मे के हवाले से जानकारी नहीं है, यानी कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है. हालांकि अब 10 बज चुके हैं, लेकिन दिन भर आज ये ऑपरेशन जारी रहा. जम्मू कश्मीर के राजौरी के सेक्टर कंडी क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी रहने में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए. उन 5 शहीद जवानों में से एक जवान अखनूर के चक किरपालपुर गांव के रहने वाले हैं. हवलदार नीलम सिंह के तौर पर उनकी पहचान हुई है. शहादत की खबर उनकी सुनकर गांव और उनके घर में मातम छाया हुआ है. गर्व भी है, अफसोस तो बड़ा है. माता पिता बच्चे छोटे छोटे, अफसोस भी होता है पर गर्व भी बड़ा.
अपने देश की खातर मरने वाले के घर भी मरी जाता कई बार इंसान कोई नहीं मर सकता पर बाहर जरा देश वास्ते मरना ना अच्छी बात है। बड़े गर्व की बात है जो उन्होंने देश के लिए जान दी, अपनी कुर्बानी दी। लेकिन हमें अपना भाई नहीं मिलेगा, देश को एक नौजवान नहीं मिलेगा। वो स्टार्टिंग से बहुत चाहते थे कि जब भी आर्मी वालों को देखते थे उनके दिल में मतलब एक ऐसा गौरव था। वो कहते थे कि स्टार्टिंग में हमने आर्मी में ही जाना है। और उनकी फ़िज़िकल फिटनेस इतनी अच्छी थी, हौसले इतने बुलंद थे। लेकिन आज सुबह ही जैसे पता चला कि हमारा भाई नहीं रहा तो आंखें नमन नहीं रह गई। बस अब मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा भाई नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा, आज तो आए हैं हम चक्रपाल गांव में। नीलम सिंह जी की जो ये शहादत हुई है, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आए दिन ऐसी वारदातें, ऐसी शहादतें हमें देखने को मिलती हैं। भारतीय सेना जो है आए दिन हमारे नौजवानों की शहादतें जो है वो होती आई हैं। ये कायराना हरकत जो है पाकिस्तान आए दिन करता रहता है और सालों से हम ये देखते आ रहे हैं। अब समय है कि हमें उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है हमारी सरकार को। भारतीय सेना पे आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया गया उसमें से जो जवान शहीद हुए हैं उनमें से एक जवान अखनूर के चक्रपाल गांव के रहने वाले हैं जिनका नाम नीलम सिंह चिब हैं। आज उनके घर में मातम का माहौल है और पाकिस्तान के खिलाफ़ काफ़ी उनके गांव में गुस्सा भरा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाऊ, अखनूर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़। लश्कर तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। कुपवाड़ा जिले के मिजहल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास सेना के ब्रिगेडियर बिंदु नेगी के साथ मिजहल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। घुसपैठियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास का बयान, दुश्मन के मंसूबों को विफल करने का प्रयास रहेगा जारी। एनकाउंटर को लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तकरीबन 4 साल तक दुनिया को परेशान करने वाले कोरोना को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के दायरे से हटा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोविड अब पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गया। इसको लेकर हमने इमरजेंसी कमेटी की 15वीं बैठक में फैसला लिया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि कल यानी गुरुवार 4 मई इमरजेंसी कमेटी की 15वीं बैठक हुई। इसमें मुझसे सिफारिश की गई कि मैं दुनिया में कोविड-19 के वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी के दायरे से बाहर होने का ऐलान कर दूं। मैंने उनकी सलाह मान ली है। WHO ने बताया कि 30 जनवरी 2020 को कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जब कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था तो चीन में 100 से कम कोरोना केस आए थे और किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन 3 साल बाद जान जाने का आंकड़ा बढ़कर 70 लाख पहुंच गया, जो कि रिपोर्ट हुआ। हमें लगता है कि इसमें तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जान गई है, WHO का यह कहना है। WHO ने कहा कि कोरोना को पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को हटाने का फैसला पिछले 1 साल में हुए कोविड के केस में गिरावट को देखते हुए लिया गया है। स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड का इतना बड़ा असर हुआ कि स्कूल से लेकर ऑफिस तक बंद रहे। कई लोग इस दौरान तनाव और चिंता से गुजरे। इसने विश्व की अर्थव्यवस्था को भी नष्ट कर दिया है।
पीओजे की स्थापित सेवा समिति की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार द्वारा पीओजे के विस्थापित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखने के लिए गए फैसले का स्वागत किया और कहा कि सरकार के इस फैसले से सभी विस्थापित परिवारों को मुआवजा मिल सकेगा। विस्थापित समिति जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से आज प्रधानमंत्री मोदी जी का, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का हम धन्यवाद करते हैं। समिति की तरफ से हमारी एक मांग जो काफ़ी समय से लंबित थी उसको आज पूरा किया गया है। पीओजे के विस्थापित समिति के वन टाइम सेटलमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर जो केंद्र सरकार ने हमें जो स्कीम दी थी उसका लाभ हमें मिला, लेकिन पिछले 1 साल से इस स्कीम को बंद कर दिया गया था। उसमें हमारे 8000 लोग लगभग भी जो रिफ्यूजी थे उनका भी क्लेम सेटल नहीं हुआ था। पीएजी के समिति द्वारा आवेदन कर बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया गया और पिछले दिनों मनोज सिन्हा जी ने एक बोर कैंप के अंदर एक कैंप में हमने मांग रखी थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम इस स्कीम को एक्सटेंड करेंगे 1 साल के लिए। तो जो लोग इससे वंचित थे, जिनको आज तक क्लेम नहीं मिला हुआ था, किसी कारणवश कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे उनका या किसी कारणवश भी वो नहीं ले सके, जिनकी फाइल सब लगभग सबमिट हो चुकी हैं, वो इस लाभ को लेने में असमर्थ थे। तो आज सरकार, केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार को हम फिर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस स्कीम को एक्सटेंड करके उन लोगों को लाभ दिया है जो इस लाभ के। अखनूर में जिला विकास परिषद मैरा मांद्रिया पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक चौकी चौरा की पंचायत कनेड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनने वाली पानी की परियोजना में 1 करोड़ 90 लाख की लागत से पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया। लोगों की बहुत ही लंबित मांग को पूरा करते हुए इस कार्य को शुरू करवाया गया। सुरेश शर्मा ने कहा कि अक्सर कंडी के क्षेत्र में पानी की समस्या अधिक रहती है। पानी की इस परियोजना के पूरा होने पर इस पंचायत के 227 परिवारों को लाभ मिलेगा और इसमें 70 नए पानी के कनेक्शन लोगों के घरों में लगाए जाएंगे। इस परियोजना से कई गांवों को लाभ पहुंचेगा। हमने ब्लॉक चौकीचोरा की पंचायत कनेड़ी के अंदर पाइपलाइन की कार्य का शुभारंभ किया है, जो हमारी पंचायत कनेड़ी में काफ़ी लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। पुरानी पाइप थी, काफ़ी अरसे से लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था लोगों को। तो इसका जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ 90 लाख के करीब राशि इस पर खर्च की जाएगी, जिसके अंतर्गत हमारा गांव कनेड़ी, गांव रमीन मखियान, इसके साथ साथ चढ़ियासी, बुध चढ़ियाई, मनाल बगला, ये जितना भी हमारा एरिया है सभी एरिया में नई पाइप बिछाई जाएगी। इसके साथ साथ जो टोटल इस पे हमारी जो फैमिलीज हैं जिनको इसका फायदा होगा, 227 के करीब परिवार ऐसे हैं जिनको इसका डायरेक्ट फायदा होगा और 70 ऐसी फैमिलीज हैं जिनको आज तक कनेक्शन नहीं था और जिनको कनेक्शन दिया जाएगा। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर कृष्णा घाटी क्षेत्र में स्थित प्राचीन लोहड़ देवता मंदिर में हर वर्ष की तरह आज भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशाल यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदायों के हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और क्षेत्र में तैनात सैन्य अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मंदिर में समिति के प्रमुख एडवोकेट राजेंद्र सिंह की अगुवाई में लोक कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। पूर्णिमा के इस पवन दिन पे यहाँ जो एक विशाल भंडारा रखा जाता है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं। लोगों का ये मानना है कि इस स्थान पे आके इन्हें शांति मिलती है, इस इलाके में प्यार होता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है। आप देखिए सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ आए हुए हैं और हर अपने अपने धर्म से अपने अपने खिलाफ पेश कर रहे हैं। आज यहाँ पर लॉर्ड देवता पर जग है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर लॉर्ड देवता में। इधर देख के हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि इसका व्यू पॉइंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर खाना पीना सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है और क्या बोलते हैं, पुंछ से ये थोड़ी सी ही दूरी पर है। मैं सभी को यही बोलता हूँ कि यहाँ पर आए और यहाँ पर आनंद लें यहाँ का। आगे बढ़ेंगे, खबर आरएसपुरा से है। आरएसपुरा में ऑल जम्मू कश्मीर बटवाल सभा की तरफ से शुक्रवार को गांव चौहाला में कार्यक्रम का आयोजन कर गौतम बुद्ध की
ज्यादती श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई। सभा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मास्टर अजायब सिंह मोटन और कार्यकारी प्रधान सतपाल मंडी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। दिन है बहुत धूमधाम नाल चौहाला पिंड तहसील आसपुरा विच मनाया जा रहा है। गौतम बुद्ध जी महाराज ने अमन और शांति लियांदी। आगे बढ़ लेते हैं। कल गंदोह के मोहल्ले में नई शराब की दुकान खोलने के विरोध में गंदोह के लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि ये नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि नई शराब की दुकान के आसपास 5 स्कूल हैं। 7 दिनों के बाद विवाद समाप्त हो गया। गंदोह में बहुत भाईचारा देखा जा रहा है। दोनों समुदाय ने मिलकर इस शराब की दुकान को दादर क्षेत्र से गंदोह के मुख्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने का फैसला किया है, जहाँ लोगों को अब कोई आपत्ति नहीं है। फिक्का से मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि सब हमारा हिंदू मुसलमान जितने भी सिटीजन्स यहाँ सीनियर थे, हम सब ने एक मुतफ़िक़ा तौर पर एक जगह जो सिलेक्ट की है। ये अपने मरहूम एक मेंबर यहाँ के गुंदों के अपने प्रेमराज जी, जिनकी थोड़े 2 महीने पहले डेथ हो गई, उनकी एक दुकान है यहाँ पर। और यहाँ पर बाकी कोई दुकान नहीं है, साथ में कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल ये अलग से एक जगह है और रोड के साथ में है। तो सब लोगों ने इस जगह को सिलेक्ट किया। ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नज़दीक है, सारा कुछ है। तो ये हम यही कहेंगे कि एक सारा मुतफ़िक़ा राय से एक फैसला हुआ। दुकान खुलने जा रही, हम तो इसके खिलाफ हैं पहली बात। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर है कि भाई यहाँ हर जगह जो है दुकानें खुलनी चाहिए ताकि सरकार का रेवेन्यू बढ़े, तो एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ के लोकल्स का जो फैसला आज हमें देखने को मिला बड़ा अच्छा है। तो आज हमने विज़िट किया इस इलाके में। इससे पहले कि मैंने विज़िट की, यहाँ लोग जो थे, चाहे वो सरपंच थे या जो मौजूद हजरात थे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के, वो मुतफिक हो गए। उन्होंने एक सेलेक्ट जगह की है सेम पंचायत में, जो पंचायत गुंदोह है। तो उस भाईचारे की तरफ से, उस भाईचारे का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे पुलिस का बहुत ही अहम रोल रहा। सहूलियात जिनमें सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं वादी कश्मीर में अभी भी कुछ लोग इन सहूलियात से महरूम हैं। पहाड़ी जिला शोपियां में करीब 150 लोगों पर मुश्तमिल करीच पथरी इलाके का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर अभी तक लोग सड़क से महरूम हैं। जिला शोपियां के हीरपुरा से करीच पथरी इलाके तक 3 किलोमीटर का सफर है और अभी तक हुकूमत की तरफ से इस इलाके के लिए सड़क नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। बहुत मुश्किल होती है। हमारा गांव का नाम है किच्चा पथरी बाला, भोयान से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर है। इसके मतलब हमें चलने की बहुत प्रॉब्लम होती है, और ना पुल है, ना हमें रोड है, ना कुछ, ना पानी दिया गया आज तक। कम से कम 2014 से पीछे हमारे मतलब इतनी मुश्किलात हो रही है, ना पस्सें आ रही है, तो हमारे बारे में कोई नहीं सोच। जब हमें वोट डालना पड़ता है तो हमारा बहुत इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती है। तो आज भी बैठ के घर में स्कूल कैसे जाएगा, कैसे अपनी तालीम हासिल करेंगे। हमारी तो यही अपील है DC साहब से और आप लोगों से भी, क्योंकि हमें पुल और कदल या रोड चाहिए। हमें साथ जाना पड़ता है, बच्चों के साथ स्कूल में जाना पड़ता है, और स्कूल जब छुट्टी की टाइम होती है फिर साथ जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है साथ में। टीचरों को फ़ोन करना, किसी टाइम ऐसे भी होती है तो 12 बजे घर पे लाने पड़ते हैं वापस, जब मौसम ख़राब हो जाता है। यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है सर, बहुत सारी मुश्किलात होती है। यहाँ कंधे पर उठाकर यहाँ गांव से मुगल रोड तक ले जाते हैं बीमार को, कोई बीमार रास्ते में ही मर जाता है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, उनको भी मुश्किलात होती है। 2-3 दिन उनके भी टूट जाते हैं जिस वक्त दरिया में पानी होता है। सड़क तो है ही नहीं है, सब जगह सड़कों का जाल बिछाया गया, मगर यहाँ सड़क का नाम नहीं है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।